Good morning, students. I hope you are quite well at your homes. Today, I am going to start next chapter of biology, molecular basis of inheritance. It is the second chapter of unit 2nd. In this chapter, we will study about the DNA, RNA. Both are called as nucleic acid. Now the question arises, what is nucleic acid? Nucleic acid are the biopolymers or large biomolecules essential to all known forms of life. इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स या लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, सभी जीवित जो लाइफ फॉर्म्स हैं उन सभी के लिए आवश्यक होते हैं. एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनली न्यूक्लियोटाइड्स. एंड न्यूक्लियोटाइड्स इज ए monomer made up of 3 main components, that is a 5 carbon sugar, phosphate group and nitrogenous bases. Both the nucleic acid, DNA as well as RNA are made up of these 3 main components, a 5 carbon sugar, phosphate group and nitrogenous base. Types of nucleic acid. There are 2 types of nucleic acid. As I have explained earlier to you, DNA and RNA. The full form of DNA is deoxyribose nucleic acid and the full form of RNA is the ribose nucleic acid. Now, next topic is how can we consider DNA as a genetic material, or what are the main experiment in its support. DNA is a genetic material. There are 2 main experiments in its support that DNA is a genetic material. First one is the Frederick Griffiths experiment and second one is the Hershey and the Chase experiment. First, we will discuss about the Frederick Griffith experiment. Frederick Griffith is a British scientist and he had done this experiment in 1928. There are 2 main strains of Streptococcus pneumoniae or Diplococcus pneumoniae which can cause pneumonia in human beings as well as in other mammals also. Main 2 types of strains are found of Diplococcus pneumoniae, that is S or smooth type which can develop pneumonia, and second one is the R type or rough type which cannot develop pneumonia in the organism. First, in his experiment, he injected S strain or smooth strain into mouse and the result is mice died. In second experiment, they injected R strain into mouse and the result is mice live, because R strain or rough strain cannot develop pneumonia, only smooth strain or S strain can develop pneumonia in animals. Now in third experiment, they take S strain but heat and killed S strain, injected in mice and result is mice alive because S strain is heat and killed. In next experiment, S strain heat and killed plus R strain live. It means they mix both the strain. R strain cannot cause pneumonia and S strain यानी कि heat and killed जो S strain है वो भी pneumonia cause नहीं करती है. They mix both this type and injected into mouse. The result is mice died. From this experiment, they conclude that probably the genetic material of dead or heat and killed S strain convert or transform the genetic material of R strain into S strain. मतलब जो हीट और किल्ड S strain का जेनेटिक मटेरियल था उसने प्रोबेबली क्या किया कि S strain का जो जेनेटिक मटेरियल था R strain को S strain में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि रिजल्ट क्या हुआ, इंजेक्ट करने के बाद जो माइस थी वो डाइड हो गई, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो माइस थी वो अलाइव होनी चाहिए थी. तो इट मीन्स DNA is the genetic material which have the property of transformation and it is the genetic material. Second experiment,
made by Hershey and Chase in 1952. They take bacteriophage virus. Bacteriophage virus can infect the bacteria, mainly E. coli bacteria. E. coli is a common bacterium which is found in the intestine of human beings and other mammals also. And bacteriophage is the virus which infect the E. coli और बैक्टीरिया. इट मीन्स बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट में इसी तरह के उन्होंने दो बैक्टीरियोफेज वायरस लिए और लेकिन इसमें क्या इन्होंने किया, इनको रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया. एक को क्या किया कि 32 फॉस्फोरस इनका डीएनए लेबल्ड किया और एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया 35S, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेबल्ड किया. क्या किया इनका प्रोटीन कैप्सूल लेबल्ड किया. इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने जो वायरस है इसको ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि वायरस इज कंपोज्ड ऑफ ओनली द प्रोटीन एंड द डीएनए. क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो केवल प्रोटीन और डीएनए के ही बने होते हैं. ये जो आउटर कवरिंग होती है वायरस की, किसी भी वायरस की, वो प्रोटीन कोटिंग होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है. और जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो किससे बनकर के बना हुआ होता है, जैसे कि अदर डीएनए डीऑक्सीराइबो शुगर, न्यूक्लिक फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बने होते हैं. इसी तरह से इनका डीएनए भी बना हुआ होता है. इन्होंने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इनको लेबल्ड क्या किया, अलग अलग किया. एक के प्रोटीन कैप्सूल को 35S से सल्फर से लेबल्ड किया और एक में 32 फॉस्फोरस से इनके डीएनए को लेबल्ड किया. इसका मतलब जो सल्फर है, सल्फर इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड फॉस्फोरस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज. फर्स्ट इन्फेक्शन, यानी कि इस बैक्टीरियोफेज ने इस वायरस पर अटैक किया. अटैक करने के बाद जेनेटिक मटेरियल ई. कोलाई बैक्टीरिया के अंदर आ गया. नेक्स्ट में क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो अंदर जा कर के क्या प्रोसेस करता है और किस तरह से रहता है वो इस डायग्राम में शो किया हुआ है. इसके बाद जब इनका ऑब्जर्वेशन किया गया तब ये पाया गया कि क्योंकि इसको हमने लेबल्ड किससे किया था, हर्शे और चेज ने 35 सल्फर से, और मैंने आपको बताया कि सल्फर जो है वो चीफ कंपोनेंट होता है किसका, प्रोटीन का. लेकिन ये जो लास्ट में ये जो जेनेटिक मटेरियल मिला, इसके ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चला कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव 35 सल्फर जो है वो डिटेक्शन उसका नहीं हुआ. तो इस बात से ये बात प्रूव होती है कि जब इन्फेक्ट किया इस बैक्टीरियोफेज ने वायरस ने बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट किया, तो जो प्रोटीन कोट है, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है कि प्रोटीन कोट जो है वो बाहर ही रह जाता है, केवल जेनेटिक मटेरियल ही कहाँ जाता है, इनसाइड द सेल जाता है. और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि केवल जो जेनेटिक मटेरियल है वो ही अंदर जाता है और ये कंसिडर करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस जो है उससे लेबल्ड बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया गया. उसी तरह से इसने ई. कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया. उसके बाद प्रोटीन कवरिंग बाहर रह गई और जेनेटिक मटेरियल अंदर है. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है इसके आगे भी इसमें प्रोसेस हुआ और इसने अपने ही जैसे डीएनए को बनाया और इसमें जो है रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस जो है वो डिटेक्ट हुआ इनसाइड द सेल. तो ये एक्सपेरिमेंट भी इस बात को प्रूव करता है कि DNA is a genetic material. That's all for today, students. In next class, we will discuss about the structure of DNA. Thanks to all. Till then, stay home, stay safe.